So now let us see how to perform queries in OpenOffice Base. How to perform queries in OpenOffice Base. So let us go there. So we have opened this, then open database and click here, select open an existing database, because we know how to create database, everything you know. So here simply what we have to do, we have to open an existing database for working. So I have opened MyDB. Okay. So in MyDB, now we are working in MyDB. So here you can see first option is table, second option is queries, third option is form, and last option is report. Okay, so we have worked with टेबल्स, टेबल के साथ हम लोग काम कर लिए, किस टेबल कैसे बनाना है, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करना है, टेबल के डेटा को मॉडिफाई कैसे करना है, फिर दो टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बनाना है, वो सारा काम हम लोग कर चुके हैं. सो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन हियर, दैट इज क्वेरीज. ये जो अभी सेलेक्टेड है वो क्या है, क्वेरीज सेलेक्टेड है. सो क्वेरीज कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, क्वेरीज करने के लिए भी यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, सेकंड है यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, एंड थर्ड है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू. एसक्यूएल का मतलब होता है, एसक्यूएल का मतलब होता है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एसक्यूएल, SQL. So SQL stands for structured query language. Structured query language. So query करने का लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, structured query language. So SQL is a language using which we can query database. क्वेरी किससे, किसको किस पे क्वेरी करते हैं, तो क्वेरी हम लोग करते हैं डेटाबेस पे, डेटाबेस से पूछते हैं, है ना. सो एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज वी कैन से यूजिंग विच वी कैन क्वेरी अ डेटाबेस. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? एंड फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज दैट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, सो डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग क्वेरीज आर, फर्स्ट वन इज क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू. आर यू एबल टू सी दिस? Then use wizard to create query, and third one is create query in SQL view. So all these three different way of creating and performing queries are there. So first of all we will learn how to create query using wizard. कौन सा देखेंगे हम लोग? फर्स्ट सबसे पहले क्या देखेंगे, विजार्ड को यूज करके क्वेरी कैसे हम लोग करेंगे, वो हम लोग देखने जा रहे हैं. हाउ टू क्रिएट क्वेरीज यूजिंग विजार्ड. Okay, so for that simply you click on this use wizard to create query. So this dialog box is there. Now here you see in this tables already imp table is selected. Okay, you can select different tables, you can select different, these tables are there, imp table, employee table, project table, student table, then teacher table, then TST tables are there. So on which table you want to perform query, that you have to select. Once again let me repeat what I am doing. Click on wizard to create query, then this dialog box will appear. Then in this dialog box what you have to do, here you see in the right pan different steps are there. So at first we are at the first step, that is field selection step. So for field selection step you have to select the tables, on which table you want to perform the query, किस टेबल से आपको डेटा चाहिए होगा. सो क्या करना होगा, उस टेबल को पहले आपको सेलेक्ट करना है. सो राइट नाउ इट इज सेलेक्टेड imp, but we can select different table also, no problem. So click here and then you can see different tables are there. So on which table you want to work. So suppose I want to work on imp table, because there are some data we have I have inserted some data in the imp table, that's why I am selecting this imp table. Okay, you can select any other tables, you can create other tables, and then you can perform queries on that particular table. So once you have selected a table, now in this box
all the fields of that particular table will be visible, will be displayed. Means what different columns are there in that particular table will be displayed in this box. What different fields are there? They are employee code, that is E code, then employee name, that is E name, then department, that is DEPT, and then salary, that is SAL. So these different fields are there in the table. Okay. Now, what different field you want to select in query? जैसे यहाँ पे आ जाओ, अभी हमारा टेबल क्या है? टेबल है हमारा एम्प. हमने क्या कर लिया? एम्प टेबल को सेलेक्ट कर लिया. अब इस टेबल में फील्ड क्या क्या है? फील्ड हमारा ये है, एम्प्लॉय कोड है, फिर है एम्प्लॉय नेम है, फिर क्या है? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, फिर क्या है? सैलरी है. दीज आर द फील्ड्स. ओके, वंस यू हैव सेलेक्टेड, सो इस फील्ड में उस टेबल में ये सारे फील्ड है. सो अब यहाँ पे है कि व्हाट डिफरेंट फील्ड यू वांट टू सी. जैसे आपका रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे मान लो कि आपका रिक्वायरमेंट ये है कि यू वांट टू सी द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. आप क्या चाहते हैं कि आप सारे एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं. ऑल द कंप्लीट डिटेल्स. कंप्लीट डिटेल्स का मतलब क्या हो गया? उनका ई कोड क्या है, ई नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी कितना मिलता है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखना है. तो इसके लिए आपको क्वेरी क्या हो जाएगा? क्वेरी हो जाएगा, अगर लिखना है एसक्यूएल व्यू में लिखना होगा क्वेरी, तो हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट, और बिकॉज एवरी फील्ड यू वांट, सो फॉर एवरी फील्ड का मतलब होता है स्टार. सो इफ यू आर राइटिंग स्टार एंड देन यू हैव टू राइट फ्रॉम, and then you have to write table name, so table name is imp. So this is how you can write in SQL view. But this is what we are not learning now. We are learning how to create query using design view. So in using wizard. So how to write this query, how to perform this query using wizard, that is what I am going to explain to you. Okay, so go back there. So what we have done, we have selected the tables. Now you see here two boxes are there. देखो तुम लोग बीच बीच में बोला करो, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है. So you have to say something. Okay, so what I am going to do here, here you see in this span, we have selected table, and then all the fields available in that table is present. Now what we want to do, we want to see all the details, all the fields. So see here, the different arrows keys are there, double arrow. So if you are clicking this one, then what will happen? All the fields from this left side, they will move to the right side pan. Means what? We want to see everything. We want to see employee code, we want to see employee name, we want to see department, we want to see salary, everything we want to see. Okay, so simply then this is what table is imp, and what different field we are going to display out of this? We are going to display employee code, employee name, department, and salary. Everything we want to see for all the employees. So at this step, simply your query is complete. Simple queries you are going to do. What query it is? You want to see the entire thing for all the employees. So everything for every employee you want to see. So simply for that purpose, simply what you have to do, you have to select the table, and then from that table you have to move all the fields to the right side. Means all the fields are going to be part of your result set. Okay, then after that simply click here, okay, finish, click finish. So now you see your result set is ready. आपको रिजल्ट सेट मिल गया. यहाँ पे क्या क्या अभी मिल रहा है? आपको मिल रहा है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. देयर आर 9 एम्प्लॉयज आर देयर, देयर नेम, these names are there, then these are their department, and these are their salary. So everything you are getting. Not everything you don't want to see, you want to see some selected field. For example, suppose you want to know the दूसरा यहाँ पे हो गया, suppose you want to see to display what?
name and their salary, name and their salary of all the employees. आप ए जानना चाहते हो, ठीक है, नाम चाहिए आपको और क्या चाहिए, उनका सैलरी चाहिए, वो दिखना चाहिए किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिलता है, ये मुझे जानना है। तो फिर आप क्या इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि सेलेक्टेड फील्ड को आप चेक डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर से इसको हम डिलीट करके फिर से अभी करते हैं। मान लो कि अभी आपको चाहिए क्या कि नेम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे जाओगे, टेबल सेलेक्टेड है, नेम चाहिए तो नेम को ले लिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए तो डिपार्टमेंट को भी ले लिए, सैलरी को चाहिए तो सैलरी भी ले लिए, और सारे एम्प्लॉय का चाहिए तो यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो अभी आ गया हमारा नेम भी आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया, सैलरी भी है, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसको कितना सैलरी मिलता है ये मुझे दिख गया, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म सिंपल क्वेरी। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? So what you have to do, click on this, then this dialog box appears. So table is that, in imp table this time we want to see only employee name and their salary. So select the table, that is imp, then employee name, so e code, e name, department and salary. So which field is employee name? So this is e name. So click, select this one, e name, and then now see here single right arrow is there, click that one. So that field has been shifted to right pan. Now second you want to display salary, so click on salary and then click on that salary. Suppose by mistake आपने इसको भी इधर प्लेस कर दिया, ये आपको नहीं चाहिए था, एम्प्लॉय नहीं, डिपार्टमेंट नहीं चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको आप लेफ्ट एरो को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वापस आ जाएगा। इस तरह से सारा का सारा इधर जो गलत सिलेक्शन हो गया पूरा का पूरा गलत हो गया है, तो आप इधर से ऐसे कर देंगे तो पूरा इधर आ जाएगा। आपको सारा इधर से इधर चाहिए तो इधर कर देंगे तो सारा आ जाएगा। फिर बैक कर लिए, मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, सो सेलेक्ट दैट वन एंड देन क्लिक दिस एंड देन क्लिक सेलेक्ट सैलरी एंड देन क्लिक दैट. So we want to see employee name and their salary, that's all. So once अभी हम लोग को क्या चाहिए, सेकेंड टाइम जो हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं हम लोग चाहते हैं वी वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर सैलरी फॉर एवरी एम्प्लॉय, सो नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, क्लिक कर दो फिनिश पे। सो देखो अभी आपका रिजल्ट से, चलो अब देखो मान लो कि अब जो है सो आप जैसे आपका जो ये जो टेबल है उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज का मान लो कि इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, ठीक है, thousands of employees are present in that table, their details are there, but you do not want to see the details of all the employees, you want to see the details of selected employees. तो आपको अब क्या करना पड़ेगा कि ये जो टेबल है, ये जो रिजल्ट सेट आपका एक क्वेरी में आ रहा है, ये जो रिजल्ट सेट आ रहा है इस तरह से, सो मेनी एम्प्लॉयज़ आर इंक्लूडेड। सो अब इस पर आपको क्या करना पड़ेगा कि फिल्टरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। सब नहीं चाहिए ना, फिल्टर उसमें से फिल्टर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक स्टेप और बढ़ जाना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वेयर, एंड उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा कंडीशन, वेयर के साथ आपको यूज करना पड़ेगा कंडीशन, ठीक है। सो मीन्स अब वो जो आपका जो अब जो रिजल्ट सेट होगा, ये जो अब जो रिजल्ट सेट बनेगा उसमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जो रिजल्ट सेट आपका जो बनेगा उसमें इन जो ओरिजिनल टेबल है उसमें से सिर्फ वही रिकॉर्ड आपका रिजल्ट सेट का पार्ट बनेंगे जो कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तभी वो इसका पार्ट बनेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर रिजल्ट सेट, ठीक है ना। सो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू सी द डिटेल्स or display the details of all employees
details of all employees whose salary is more than suppose 30,000. मीन्स अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब रिक्वायरमेंट आपका चेंज हो गया ना. नाउ यू नीड टू सी द डिटेल्स ऑफ, मीन्स यू वांट टू सी एवरीथिंग, you want to see everything about an employee, but the condition is that their salary must be more than 30,000. एक कंडीशन अब लगा दी है आपने यहाँ पे, ठीक है. तो इसके लिए आपको लिखना, क्वेरी लिखेंगे अगर कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे सेलेक्ट स्टार मीन्स एवरीथिंग, एवरी कॉलम फ्रॉम टेबल नेम. सो टेबल नेम इज इम्प. देन अब यहाँ पे आपको कंडीशन आ गया वेयर सैलरी इज ग्रेटर दैन 30,000, बिकॉज सैलरी जो है सो आपको 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए. सो अब जो रिकॉर्ड उसको फुलफिल करेगा वही रिकॉर्ड आपका रिजल्ट सेट का पार्ट बनेगा. सो नाउ हाउ टू राइट दिस, हाउ टू परफॉर्म दिस इन यूजिंग विजार्ड, हाउ टू परफॉर्म दैट वन. सो फिर यहाँ पे आप वापस आ गए अपना डेटाबेस में, जो पहले से था उसको डिलीट कर दो, आप रख भी सकते हैं, मैंने डिलीट कर दिया. So now the question is that, now our second query is that we want to see the details of all the employees whose salary is more than 30,000. So again click on that, then already table is selected. So this time what we will do, which field we want to shift to the right side, what different fields we want to shift to the right, to see the details, everything we need to see. So all the field must be selected, all the field must be selected. Okay, so we have done what we have done, we have selected the employee table, then we have selected all the fields. Now next thing is what, next thing that we have to apply this condition now where salary is greater than 30,000. This condition now we have to apply. So come here, how to apply the condition, let me show you. So this time what we will do, we will not click finish. Earlier we were clicking finish है ना after this, but this time because we have to apply condition also, so what we will do, we will click on next. So click on next now. So now you see different thing is there, sort by is there, so we do not want to sort here, so move, we don't want to sort, so move further, click on next. Now here you see match all the followings, matching criteria, select the search condition. So search condition we need to apply one condition, because जो हमारा रिक्वायरमेंट था क्या है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 30,000. सो इस स्क्रीन में मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है. सो यहाँ पे देखो दिस इज सेलेक्टेड. नाउ हियर कम हियर. सो ऑन विच फील्ड वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन, व्हाट डिफरेंट फील्ड्स आर देयर, we are having employee code, employee name, department and salary. So the condition is based on salary, because salary पे condition लगाना है कि salary of employee should be bigger or more than 30,000. So here we have to select this salary. See all the fields are there, employee code, employee name, department and salary. So we have to select salary. And देखो by default यहाँ पे क्या आ रहा है, condition में क्या आ रहा है by default, what is there, is equal to आ रहा है. तो हमें is equal to नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, greater than चाहिए. तो क्लिक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो is greater than भी है, is equal to है, not equal to, so many things are there, है ना, बहुत सारा इसमें है. सो आपको रिलेवेंट जो आपको चाहिए वो सेलेक्ट करना है. सो आपको क्या सेलेक्ट करना है, इज ग्रेटर देन सेलेक्ट करना है. इज ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लिया. नाउ किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो आपको वैल्यू डाल देना है. तो वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका 30,000. सो वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे 30,000. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू. हमने क्या किया, टेबल लिया, टेबल का सारा फील्ड ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट करके हम लोग सेलेक्ट सर्च कंडीशन वाले स्क्रीन पे आ गए. कंडीशन वाले स्क्रीन पे किस फील्ड पे कंडीशन लगाना है, वहाँ यहाँ से हमने फील्ड को सेलेक्ट किया. उसके बाद क्या कंडीशन लगाना है, तो ग्रेटर देन का कंडीशन लगाना है, और ग्रेटर देन किस वैल्यू से, तो उस वैल्यू को हमने डाल दिया. ठीक है ना, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू. अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, कंडीशन भी अप्लाई कर दिया. सो अब मुझे क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लिक फिनिश. सो अब यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे.
तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे रिजल्ट सेट आपको मिल जाएगा। सो रिजल्ट सेट आप फिर से देखो, सारे एम्प्लॉय का चेक करो, सभी एम्प्लॉय का जो सैलरी है जो अभी हमारे रिजल्ट सेट बना है उसमें क्या है 31,000, 31,000, 31,200, 32,000। सो सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ इस रिजल्ट सेट में आए हैं जिनका की सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, बिकॉज दैट वाज द कंडीशन। दिस इज what we need to display, so that is what we are getting here, that is what we are getting here. Next question है आपको, to display name, department and salary of employees working in department 10. Question is that to display name, department and salary of employees working in department 10. So यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हो गया कि सारे एम्प्लॉय का नहीं चाहिए हमको और सारा इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, 3 फील्ड चाहिए, और सारे एम्प्लॉय का भी नहीं चाहिए। किस एम्प्लॉय का चाहिए, जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहे हैं उन्हीं का चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेरी बनेगा कैसे बनेगा, एसक्यूएल व्यू में क्वेरी जो बनेगा उस तरह से बनेगा, सेलेक्ट, आपका नेम चाहिए, सो नेम के लिए फील्ड है आपका ई नेम, कॉमा, डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट के लिए फील्ड है आपका DEPT, उसके बाद सैलरी चाहिए तो सैलरी, सैल, फिर आपको टेबल, कौन सा टेबल में है हो तो इम्प टेबल में है, इम्प टेबल लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, सारे एम्प्लॉय का आ जाएगा, अभी छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट 10 वाले का सिर्फ चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर आ जाएगा, वेयर, और किस फील्ड पे लगेगा, डिपार्टमेंट, बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट नंबर किस पे आ रहा है, डिपार्टमेंट DEPT फील्ड पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा DEPT = 10। सो दिस इज योर क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। जब एसक्यूएल व्यू में लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए, यहाँ पे विजार्ड यूज़ करके क्वेरी बनाना है, तो अब इस क्वेरी को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलो, ये तो हम पिछला क्वेरी का रिजल्ट सेट है, इसको डिलीट करो, ठीक है। अब आ जाओ आप, अब नया क्वेरी फिर से हम लोग बना रहे हैं, तो क्या करना है, फिर से आप जाएंगे विजार्ड पे, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, सो सेलेक्ट दैट वन। सो टेबल इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, वी वांट टू सी not all the fields, this time selected field we need to see, so we need to see employee name, so select employee name, click arrow, select department, click arrow, select salary, click arrow. So these 3 fields we need to see for employees who are working in department 10. Okay, so this time we will not click finish, we will click on next button, because we have to put condition. So in this screen we do not want to do anything because we are not going to sort the result. So click on next. Now matching condition screen is there. So what we have to do, we have to select the employee name, department and salary of those employees who are working in department 10. So कौन सा फील्ड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, फील्ड को सेलेक्ट करो। तो किस फील्ड पे कंडीशन लगाना है, EMP or department? डिपार्टमेंट, राइट, वेरी गुड, हु इज टेलिंग, So Raj Business. very nice, very nice. So department, so select department, okay, then अब यहाँ पे इक्वल टू लेंगे या कुछ और लेंगे, इक्वल टू ही लेंगे, So equal to. इक्वल टू लेंगे, गुड। Equal. सो यहाँ पे अब जो वैल्यू डालना है वो हम वैल्यू डाल देंगे 10, ओके। नाउ आवर क्वेरी इज कंप्लीटेड, नो नीड टू गो टू नेक्स्ट, सिंपली क्लिक हियर, फिनिश। Finish. So see here, now only 3 employees are there, only 3 employees who they are, Abhishek, Ridhira and Manish. These 3 employees are working in department 10 and these are their names and salary, ठीक है। So this is how we can perform queries using wizard. Next let us see, now let us see sorting, how to sort the result set. So जैसे क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, टू का मतलब हो गया
एग्जीक्यूट और क्रिएट क्वेरी टू. सो क्रिएट क्वेरी बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ. क्रिएट क्वेरी टू क्या, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, अरेंज्ड एज पर देयर सैलरी. क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज अरेंज एज पर देयर सैलरी, मीन्स सैलरी के बेस पे सॉर्टिंग कर देना है रिजल्ट को. यानी कि जो सबसे कम सैलरी वाला होगा उसको सबसे ऊपर में आएगा, उससे ज़्यादा सैलरी जिसका होगा वो उसके नीचे होगा. ऐसे करके सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स, पूरा डिटेल्स हमको चाहिए. पूरा डिटेल्स मीन्स एवरी फील्ड वी नीड. सो इसका क्वेरी जो बनेगा एसक्यूएल व्यू में कैसा बनेगा? एसक्यूएल व्यू में आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेलेक्ट, because we need to display everything, so everything matlab star, then table name, so from table name is imp, okay, that thing. But here we do not want to filter, we do not means ऐसा हम लोग को फिल्ट्रेशन नहीं करना है. सेलेक्टेड एम्प्लॉय का नहीं, सारे एम्प्लॉय का बोल रहा है. तो सारे एम्प्लॉय का बोल रहा है तो सारे यहाँ पे वेयर क्लाउज आएगा ही नहीं, क्योंकि नो कंडीशन इज रिक्वायर्ड. ओके, सिंपली क्या करना है कि इस रिजल्ट को सॉर्ट कर देना है. तो इस सॉर्ट कर देने के लिए यहाँ पे आ जाता है ऑर्डर by, and then you have to write the field name on which you are going to sort the result. So sorting is to be done on salary. So this is the query, but right now we are learning how to create it in wizard. Okay, so इसको हम लोग वहाँ पे क्रिएट करेंगे. सो यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर से आ जाओ. इसको फिर से मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना. सो यहाँ पे चले गए, क्लिक कर दिया, टेबल सेलेक्टेड है. वी नीड टू डिस्प्ले एवरीथिंग दिस टाइम, सो ऑल द फील्ड्स वी विल बी कीपिंग इन द राइट पैन. दिस इज लेफ्ट पैन, फॉर आई थिंक फॉर यू इट इज़ लेफ्ट पैन. सो इस तरह से हम लोग मूव कर देंगे, ठीक है ना. सारा फील्ड चाहिए हमें. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे. सो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इस स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, select the sorting order. So sort by किसके बेस पे आपको सॉर्टिंग करना है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट टू सॉर्ट द रिजल्ट. सो सॉर्टिंग हम मुझे करना है क्या चीज़ पे, सैलरी के बेस पे. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सॉर्ट बाय, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे. सो सेलेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल सेलेक्ट सेल, imp.cell. And now here you see right side, you see here it is given ascending, descending. So in what order you want to arrange the result? You want to arrange in ascending order. So already it is selected, ascending order is already selected, so no need to do anything else. But now our query is completed. Simply what we have to do, you have to click on finish. So now you check the result now. So they are coming in as per their salary. Employee E002 is a first record, Manish is first record because Manish is getting the minimum salary 23,000, and this E009 Sohail is getting the maximum salary 32,000. So that's why he is the last. डिलीट मोड में आप जो है सो डिसेंडिंग मोड में आपको करना है. तो आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे यहाँ पे और ए ले लिया, आप सारा रिकॉर्ड, सारा फील्ड को सेलेक्ट कर लिया. देन आप क्लिक करो नेक्स्ट, and then sort by salary, and then click on descending here, select descending. So what will happen, the result will be selected, the result will be displayed in descending order of the salary. So अभी देखो सुहेल सबसे टॉप में चला गया और मनीष सबसे नीचे आ गया. So descending order हो गया. इस तरह से आप दूसरे फील्ड पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं. जैसे कि मान लो कि आप चाहते हैं कि नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए हमारा रिजल्ट. तो आप क्या करोगे, नेम वहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, नेम, सारे फील्ड ले लिए, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू सॉर्ट एज पर देयर नेम, एंड सपोज इन असेंडिंग ऑर्डर वी वांट टू परफॉर्म, देन क्लिक ऑन फिनिश. सो नाउ यू सी द रिजल्ट इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम. अभिषेक फर्स्ट रिकॉर्ड